افق پر بادلوں کی چھاؤں ہے، شہر میں ٹھنڈی ہواؤں کا راج ہے، مطلع ابر آلود ہے، وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ 20 مارچ تک جاری رہے گا۔ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ کم سے کم درجہ حرارت 15 ڈگری رہنے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 53% تک ریکارڈ کیا گیا۔ شہر میں 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید کیا پیشگوئی کی گئی ہے، سمرہ فاطمہ سے جان لیتے ہیں۔ سمرہ بتائیے گا۔ جی، باغوں کے شہر کے موسم کی بات کر لیجیے تو موسم اس وقت بہت ہی خوبصورت اور دل فریب ہے، کیونکہ سحری کے وقت بھی مختلف علاقوں میں بوندا باندی ہوئی تھی، جبکہ ابھی صبح سویرے بھی شہر کے مختلف علاقوں میں بادل برسے ہیں، جس سے موسم میں خنکی اور ٹھنڈک کا احساس مزید بڑھ گیا ہے۔ افق پر بادلوں کا بسیرا ہے، کالی گھٹائیں آسمان پر موجود ہیں جو کہ وقفے وقفے سے برس بھی رہی ہیں اور جل تھل بھی ایک کر رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے آج بھی شہر لاہور میں بارش کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں، کیونکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشن گوئی کی گئی تھی کہ 17 مارچ سے مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہوگا، جو نہ صرف شہر لاہور میں بلکہ پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی بارشیں برسانے کا باعث بنے گا۔ شہر لاہور میں آج بھی وقفے وقفے سے تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، جبکہ بارش اور اسی کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہواؤں کے باعث درجہ حرارت میں بھی کمی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے۔ اس وقت شہر کا موجودہ درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ آج کم سے کم درجہ حرارت 15 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کے امکانات بتائے جا رہے ہیں۔ ہوا میں نمی کا تناسب 53% تک ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ آئندہ چند روز تک بھی شہر کا مطلع جو ہے وہ جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ کل اور پرسوں بھی شہر میں جو ہے وہ گرج چمک کے ساتھ بارش کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ آج بھی 20 سے 60% تک امکان ہے کہ شہر میں جو ہے وہ بادل برسیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ مارچ کے اختتام تک موسم جو ہے وہ اسی طرح سے خوشگوار محسوس کیا جائے گا۔ اور بادلوں کے مابین آنکھ منچولی دیکھنے میں نظر آئے گی۔ بارش کی فی الحال کوئی واضح طور پر پیشن گوئی نہیں کی گئی، لیکن یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ عید کا موسم خوشگوار ہے۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ سمرہ تھی، آگاہ کر رہی تھیں۔ شہر میں ہونے والی بارش سے لیسکو کا ترسیلی نظام متاثر۔ کمپنی کے متعدد فیڈرز پر ٹرپنگ سے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو چکی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے، ہمارے ساتھ شاہد سپرا ہیں، جی آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، شہر میں ہونے والی بارش کی وجہ سے لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کا ترسیلی نظام متاثر ہو رہا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ کمپنی کے 11 kV فیڈرز اور ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمرز پر فنی اور تکنیکی خرابیاں پیدا ہونے کی وجہ سے مختلف علاقوں میں بجلی کی سپلائی بند ہوئی ہے اور متعدد ایسے فیڈرز ہیں جہاں پر فالٹ کی نشاندہی بھی نہیں کی گئی اور گھنٹوں سے بجلی کی فراہمی معطل رکھی گئی ہے۔ چونکہ شہر میں وقفے وقفے سے بارش ہو رہی ہے اور بعض ایسے علاقے ہیں جہاں مسلسل بوندا باندی کی وجہ سے لیسکو کے لائن سٹاف کو مرمتی کام کرنے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ایسے میں لائن سٹاف کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ جہاں پر بارش کا سلسلہ تھم گیا ہے وہاں بحالی کا کام شروع کیا جائے، ادروائز جہاں مسلسل بارش ہو رہی ہے لائن سٹاف کو روک دیا گیا ہے کہ وہاں کام نہ کیا جائے، جس کی وجہ سے مرمتی کام میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اور بنیادی طور پر لائن سٹاف کو روکنے کی یہی وجہ ہے کہ بارش کے دوران برقی املاک ان کے لیے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ ذرائع نے مزید یہ بتایا ہے کہ شہر کے مختلف علاقوں میں ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمر جلنے اور ان میں خرابیاں پیدا ہونے کی وجہ سے بھی سپلائی معطل ہے، اور ان کی ریپلیسمنٹ کے لیے لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے ملازمین کو الرٹ رکھا گیا ہے تاکہ بجلی کی سپلائی کو جلد بحال کیا جائے، لیکن مسلسل بارش اور بوندا باندی جو ہے وہ بحالی کے کاموں میں رکاوٹ بن رہی ہے اور اس کی وجہ سے صارفین کو گھنٹوں بجلی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شاہد سپرا، بہت شکریہ آپ کا۔ تو عید میں چند ہی دن باقی ہیں، بارش نے بازاروں کی رونقیں ماند کر دی ہیں۔ اشرا بازار میں بارش کے باعث خریداروں کا رش تھوڑا کم دیکھا جا رہا ہے۔ بارش کے باوجود عید کی تیاری جاری ہے، نئے ڈیزائنز کی مانگ برقرار ہے۔ بات کر لیتے ہیں، افشا رضوان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ افشا، کہیے گا 2 دن رہ گئے ہیں عید میں، خواتین کی تیاری کہاں تک پہنچی ہے؟ بازار میں کیسی گہما گہمی دیکھ رہی ہیں آپ؟ جی بالکل، 2 دن باقی رہ گئی عید میں۔ خواتین کی تیاری تو آخری وقت تک، چاند رات تک پوری نہیں ہوتی ہے، تو ابھی بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ خواتین کی تیاری پوری ہو گئی ہے، لیکن بارش کی وجہ سے کیونکہ لاہور میں بادلوں کا بسیرا ہے اور صبح سویرے سے ہی وقفے وقفے سے بارش ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے بازاروں میں جو گہما گہمی ہے وہ ابھی تھوڑی کم دیکھی جا رہی ہے۔ خواتین آ تو رہی ہیں لیکن تھوڑی سی سستی کا شکار ہیں، شاپنگ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، پھر بھی اپنی جو ضروری کی چیزیں ہیں، بیگ ہے، میچنگ کی چوڑیاں ہیں، جوتے ہیں، کپڑے ہیں، وہ خریدتی ہوئی تو ہمیں دکھائی دے ہی رہی ہیں۔ ہم بھی اس وقت ایک شاپ میں موجود ہیں اچرا بازار میں، ہمارے ساتھ جو بھائی موجود ہیں ان سے بات کریں گے۔ یہ اپنی بیگم کے لیے خصوصی بیگ لینے آئے ہیں، مجھے بتائیں کون سا بیگ پسند کیا آپ نے اپنی بیگم کے لیے؟ یہ والا بیگ پسند کیا ہے۔
इसमें कलर उनसे पूछ के आए थे, कैसे पसंद किया? वो है नहीं आपके साथ, तो कैसे उनको पसंद? एक्चुअली उनका सूट जो है पीच कलर में है ना, तो फिर इस वजह से पीच कलर में लेना पड़ा। उधर से मिलनी था रात धर्मपुरा से, मुगलपुरा से, तो फिर इचरा बाजार में गुजरा था तो मैंने कहा चलो इधर से ट्राई कर लेते हैं, तो ये मिल। खवातीन की तैयारी तो हम देखते हैं कि आखिरी वक्त तक जारी रहती है, मर्दों का क्या होता है? आपने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, ईद के लिए कपड़े वगैरह ले लिए? हाँ, एक जूती ली है और एक सूट था ब्लैक का, वो सिलवा लिया, बस हमारी तैयारी हो गई है। बस एक ही सूट लिया? काफ़ी है एक सूट ही, उसके लिए 3 दिन गुजर जाएंगे। और आपकी बेगम ने कितने लिए? यकीनन उन्होंने तो 2-3 लिए होंगे। बेगम ने अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 सूट बनवाए हैं। 5-6 सूट? जी हाँ जी, बिल्कुल उनका कहना है कि बेगम ने 5-6 सूट बनाए हैं, लेकिन उन्होंने एक लिए। मर्दों का यही होता है कि मर्दों की तैयारी ज़रा कम देखने में आती है, एक सूट से ही वो ईद के 3 दिन गुजार लेते हैं। आप मुझे बताएं भाई, बैग की वैरायटी कौन सा ऐसा बैग है जो आजकल ज़्यादा इन है और ख़वातीन बहुत डिमांड कर रही हैं? हमारे यहाँ लोकल वैरायटी भी है और इम्पोर्टेड वैरायटी भी है। यहाँ बात आ जाती है रेट की। यहाँ हमने कारोबार के हालात इस तरह के कि हमने सेलें लगाई हैं। हमारी यहाँ 800 से सेल स्टार्ट है। यहाँ कस्टमर इस तरह का है कि इस वक्त जो कारोबारी हालात है, आपके सामने आज 28 रमज़ान मुबारक है, तो आप काम के हालात देख सकते हैं कि मार्केट के क्या हालात हैं। माशाल्लाह इस टाइम यहाँ रश होता था मार्केटों में, फिर वक्त हम लोग दुकानदार हजरात हैं, हम कस्टमर का इंतज़ार करते कि कस्टमर कहाँ से आएगा, किधर से आएगा, और यहाँ हमने ऑलरेडी सेलें लगा के बैठे हुए हैं। बिल्कुल उनका कहना है कि हम सेल लगा के बैठे हुए हैं ईद के दिनों में, तो थोड़ा सा महंगाई की वजह से कारोबार भी मुतासिर हुआ हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ख़वातीन की जो तैयारी है वो अभी जारी है। और इचरा बाज़ार में ख़वातीन आ रही हैं, थोड़ा सुसवी से शिकार हैं, आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आ रही हैं, आके ट्रेंडिंग कपड़े देख रही हैं, फैशनेबल कपड़े देख रही हैं। जो भी चीज़ें उनकी रह गई हैं, मेहंदी के स्टॉल पर खुसूसन जो है अब रश लगने लग गया है, और चूड़ियाँ जूते जो है वो ख़रीदती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ तफशा थी, आगाह कर रही थी। आबाई इलाकों में ईद मनाने के लिए परदेसियों की वापसी किरायों में सरकारी सतह पर 10% तक इजाफा देखा गया है। नई लिस्टें आवेजा कर दी गई हैं। सरकारी किराएनामे में 1100 रुपए तक इजाफा देखा गया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे, ताहिर जमील हमारे साथ हैं। जी ताहिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद का मज़ा तो ज़ाहिर है अपनों के साथ ही आता है, और अपनों के साथ ईद मनाने के लिए, ईद सेलिब्रेट करने के लिए अब परदेसियों की बड़ी तादाद जो है वो बस अड्डों का और लारी अड्डों का रुख कर रही है। मैं इस वक्त जनरल बस स्टैंड बदामी बाग लारी अड्डा में मौजूद हूँ, और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि रौनक लगी हुई है। बड़ी तादाद में यहाँ पर शहरी, यहाँ पर मुसाफिर यहाँ पर आए हुए हैं, और यहाँ पर अपने अपने शहरों को, अपने अपने आबाई इलाकों को जाने के लिए बसों पर सवार हो रहे हैं। लेकिन जो हालिया जो इजाफा हुआ था, पेट्रोल में जो इजाफा हुआ था और जो फ्यूल की कीमतों में इजाफा हुआ था 55 रुपए तक, उसके बाद से यहाँ पे किराए बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से शहरी इंतहाई यहाँ पर परेशान हैं, और शिकवा ये करते हैं कि यहाँ पे किराए में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। 10% तक किराए में इजाफा हुआ है, और अगर इसमें पैसों के वाले में बात करें तो 1100 रुपए तक का इसमें इजाफा हुआ है। हमारे साथ कुछ मुसाफिर भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? जी किस शहर जाना है आपको? मैं मर्दान जा रहा हूँ, मगर मेरे पास किराया नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे टिकटों के नर्ख के वाले से मुझे बताएं कि आप मुतमईन हैं इनके नर्ख वगैरह से? हाँ, वो 2200 रुपये मर्दान किराया। तो यहाँ पर शहरी भी हैं, और यहाँ पर शिकवा ये करते हैं शहरी ज़्यादातर यहाँ पर कि जो किराए हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, और सीटें भी यहाँ पर वक्त पर नहीं मिलती, और रश बहुत ज़्यादा है, और मुतालबा यही करते हैं कि हुकूमत को यहाँ पर रेगुलेट करना चाहिए। इसके साथ साथ कमिश्नर लाहौर डिवीजन की ज़ेर सदारत भी आज एक इजलास हुआ, जिसमें लाहौर डिवीजन के तमाम डीसीज को और एसीज को ये हिदायत की गई थी कि यहाँ पर जो रेगुलेट किया जाए, और इंतजामात यहाँ पर, और इसके साथ साथ किराए पर भी यहाँ पर नज़र रखी जाए, और ओवर चार्जिंग की यहाँ पर किसी को इजाज़त न दी जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ताहिर थे, आगाह कर रहे थे। ईद के रंग अप्रो के संग परदेसियों की अपने आबाई इलाकों को रवानगी का सिलसिला जारी है। शहर के तमाम बस अड्डों पर मुसाफिरों का शदीद रश देखा जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान खादिम कमो हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद मनाने के लिए परदेसियों की अपने अपने आबाई इलाकों में वापसी जारी है। मैं इस वक्त सिटी टर्मिनल पे मौजूद हूँ। बड़ी तादाद में यहाँ पे भी परदेसी पहुँच रहे हैं। लाहौर के जो स्टूडेंट्स हैं, काम करने वाले लोग हैं, नौकरी पेशा लोग, वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं और अपने आबाई इलाकों को रवाना हो रहे हैं। कुछ लोग चंद दिन पहले आके टिकट्स ख़रीद के ले गए थे, वो बड़े आराम के साथ सफ़र कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने पहले टिकट्स नहीं ली, वो लंबी कतारों में लगे हुए हैं। घंटों इंतज़ार उन्हें करना पड़ रहा है टिकट हासिल करने के लिए। इस वक्त यहाँ पे भी लंबी कतारें लगी हुई हैं। कुछ लोगों से बात भी कर लेते हैं। सर, आप लाहौर में क्या करते हैं, किस इलाके में जा रहे हैं, और अभी तक कोई मसाइल का सामना तो नहीं करना पड़ा?
अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बात ये है कि मैं इधर लाहौर में पढ़ता हूँ जीसी यूनिवर्सिटी में, तो मैं लिया की तरफ जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इनका ये है कि इन्होंने जो ऑनलाइन टिकट बुक करवाते हैं ना, वो सिस्टम इन्होंने ऑफ़ कर दिया है। तो इन लोगों को ये चाहिए कि इनको पता होता है ना, अब इन लोगों को पता है कि ईद पे इतने स्टूडेंट या इतना रश होता है। हुकूमत की तरफ देख लें तो हुकूमत ने किराए की तरफ इजाफा कर दिया है, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया, इन्होंने किराए बढ़ा दिए, तो ये भी स्टूडेंट के लिए एक मसाइल पैदा हो जाता है। अब इन लोगों को चाहिए या गवर्नमेंट को चाहिए कि अच्छा सिस्टम लाना चाहिए, या ये जो करप्शन वाला सीन चल रहा है, या जो ऑनलाइन ये हम टिकट बुक करवाते हैं, ये जो ऑफ़ कर देते हैं, ये भी तो एक गलत काम है ना। इससे स्टूडेंट के लिए या जो भी मजदूर भाई या जो भी अपने घर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, उनको पता नहीं कितने घंटों देर यहाँ पे लाइन लगना पड़ता है। तो ये एक अच्छा काम नहीं है इनके लिए। जी बिल्कुल, जो यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं परदेसी टिकट ख़रीदने के लिए, वो ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन सिस्टम बसों की जो कंपनियाँ हैं उनकी जानिब से बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो टिकट नहीं बुक करवा पाए हैं। अब वो यहाँ पे पहुँचे हैं, किसी बस का टिकट मिल रहा है, किसी इलाके का टिकट नहीं मिल रहा, और जो टिकट मिल भी रहा है वो घंटों कतार में इंतज़ार करने के बाद मिलता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद बसों के किरायों में भी इजाफा हो गया है, जिससे परदेसियों को वापस जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन चूँकि ईद है, सभी अपनों के साथ ईद मनाना चाहते हैं, इसलिए मजबूरन जेब के ऊपर बोझ डलने के बावजूद सभी लोग अपने अपने आबाई इलाकों को वापस जा रहे हैं ताकि ईद की खुशियाँ मना सकें। बहुत शुक्रिया उस्मान। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज़ का ईद पर मुकर्ररा से ज़्यादा किराया वसूल पर क्रैकडाउन का हुक्म। तमाम अज़ला में मुकर्ररा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम का हुक्म जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर्स को ज़ायद किरायों की वसूली और टिकट ब्लैक रोकने के लिए कड़ी मॉनिटरिंग का हुक्म दिया है। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज़ की तमाम बस स्टैंड्स पर किरायानामा नुमाया आवेज़ा करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज़ का रोज़ादार मुसाफिरों के इफ्तार का भी एहतमाम का हुक्म। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज़ का तमाम बस स्टैंड्स पर सफाई सुथराई का हुक्म। बस स्टैंड्स की इंतज़ार गाहों पर बैठने की मुनासिब इंतज़ामात यकीनी बनाने की हिदायत। आवाम को रिलीफ देने के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट दीगर मुतल्लिका हुकाम को फील्ड में चेकिंग ड्यूटी की हिदायत। बाज़ारों और मार्केट्स में समाज दुश्मन अनासिर की आमदोरफ्त की कड़ी मॉनिटरिंग की भी उनकी जानिब से हिदायत जारी की गई। ड्राइविंग लाइसेंस इजरा के हवाले से बड़ी सहूलत देने का फैसला। मोटरसाइकिल सवार ऑन रोड कहीं से भी लाइसेंस बनवा सकेंगे, सिटी लाहौर का ऐसा कहना है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं अली साही जी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में बाइकर्स को लाइसेंस के इजरा के हवाले से बड़ी सहूलत देने का फैसला किया गया है, और इसके साथ साथ जो लाइसेंस फिज़िकली जारी किए जा रहे हैं, इनको ख़त्म करके वर्चुअल लाइसेंस के इजरा पर फोकस करने का फ़ैसला किया गया है। इसी हवाले से CTO लाहौर डॉक्टर अतर वहीद की जानब से बताया गया है कि लाहौर समेत पंजाब भर में वन ऐप का आगाज़ कर दिया गया है। इब्तदाई तौर पर लाहौर और फैसलाबाद में ये शुरू हो चुकी है। तो इसमें हुकूमत की जानब से चूँकि तमाम फ़ीचर्स फ्राहम किए गए हैं, तो जितने वार्डन जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं उनको लाइसेंस के इजरा की अथॉरिटी दी जानी चाहिए, ताकि बाइकर्स ऑन रोड अपने क्वाइफ जमा करवाएं और उनको लाइसेंस का इजरा कर दिया जाए। चूँकि बाइकर्स को पहले भी टेस्ट नहीं देना पड़ रहा, और वो जैसे ही किसी ड्राइविंग सेंटर पर जाते हैं तो वहाँ पर उनको लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए शहरियों की ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी के लिए, रेवेन्यू की जनरेशन के लिए जितने भी बाइकर्स हैं उनको ऑन रोड लाइसेंस के इजरा की सहूलत दी जानी चाहिए। और इसके साथ साथ चूँकि रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों की तादाद में लाइसेंस का इजरा होता है, तो बहुत सारे लाइसेंस पेंडिंग भी हो रहे हैं और शहरियों के पास फ़िज़िकल लाइसेंस गुम भी हो जाते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ इंटरनेशनल लाइसेंस का इजरा फ़िज़िकली होना चाहिए, बाकी तमाम जो लाइसेंसेस हैं उनका वर्चुअल कर दिया जाना चाहिए। चूँकि वन ऐप में ID कार्ड डालने से तमाम तफसीलात शहरी के सामने आ जाती हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए CTO लाहौर की जानब से समरी जो है वो IG पंजाब को भिजवा दी गई है। जैसे ही मंजूरी होगी तो लाहौर समेत पंजाब भर में वन ऐप इस्तेमाल करने वाले वार्डन्स को अथॉरिटी दी जाएगी कि वो बाइकर्स को ऑन रोड लाइसेंस जारी कर सकें, और वर्चुअल लाइसेंस जो है उसका इजरा भी बनाया जाएगा।